So, hello students. So today I will be discussing hydrides. Hydrides are compounds of hydrogen with s, p, d and f block element except noble gases. Noble gases are unable to form hydrides. Group 7, 8, 9 of the periodic table do not form any hydrides. So this is called hydride gap. Classification of hydrides. These hydrides are classified into three types. Ionic or salt-like hydrides, also called saline hydrides, covalent hydrides, also called molecular hydrides, and metallic or non-stoichiometric hydrides, also called interstitial hydrides. So hydrides are actually binary compounds of hydrogen. So hydrides क्या होते हैं? Binary compounds होते हैं हाइड्रोजन के s block, p block, d और f block elements के साथ, except noble gases के साथ. ग्रुप 7, 8, 9 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इनको हाइड्राइड गैप करते हैं. ग्रुप 6 में भी सिर्फ क्रोमियम ही बनाता है एक हाइड्राइड, जिसको क्रोमियम हाइड्राइड कहते हैं. सो ये हाइड्राइड्स को तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं: आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. Now let's discuss ionic hydrides. Ionic hydrides are also called saline hydrides or salt-like hydrides. These hydrides are formed when hydrogen reacts with s block element like group 1 and group 2. Some of the examples are lithium hydride, sodium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride, calcium hydride. Lithium hydride is covalent in nature and it is less reactive. Beryllium hydride and magnesium hydride are polymeric in nature, and calcium hydride is called hydrolith. Calcium hydride is called hydrolith. These hydrides react with water vigorously and violently. Like sodium hydride reacts with water to form sodium hydroxide and evolve hydrogen gas, which catches fire. And lithium hydride is very useful as it is used to prepare lithium aluminum hydride and sodium borohydride. तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाता है और डाइबोरिन के साथ रिएक्ट करके सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाता है. ये दोनों बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होते हैं. ये सॉल्ट टाइप और सैलाइन और आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस आयनिक हाइड्राइड give hydrogen gas or liberate hydrogen gas at anode. So let's see covalent hydrides. So covalent hydrides are also called molecular hydrides. They are formed when hydrogen reacts with p block elements. So if hydrogen reacts with group 13, then it forms electron deficient hydrides. So there are three types of covalent hydrides. तीन प्रकार के होते हैं covalent hydrides. First is electron deficient hydrides, then is electron precise hydrides, and then is electron rich hydrides. So electron deficient hydrides are formed when hydrogen reacts with group 13. So group 13 elements जो होते हैं वो electron acceptor hydrides बनाते हैं. They are Lewis acids जैसे डाइबोरेन B2H6. Electron precise hydrides are formed when hydrogen reacts with group 14. तो group 14 elements से जब hydrogen react करता है तो precise बनाते हैं. जैसे मीथेन अगर देखें हम तो मीथेन में 8 इलेक्ट्रॉन है इसका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. अगर डाइबोरेन हम देखें, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर तो आप पाइएगा ये बनाना बॉन्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 होते हैं. बनाना बॉन्ड पाया जाता है इसमें. तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है. इट इज एक्चुअली डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, सो ये लुईस एसिड होता है, ये लुईस एसिड होता है. सो इलेक्ट्रॉन प्रेशर्स हाइड्राइड्स आर फॉर्म व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन. ये ना तो लुईस एसिड होते हैं ना तो लुईस बेस होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ग्रुप 15, 16 और 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 15 में नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है,
हाइड्रोजन वाटर के साथ वाटर बनाता है और फ्लोरीन जो HF बनाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है। ये सभी में बहुत छोटे छोटे एटम जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, फोन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है दे कैन बी डोनेटेड, सो दे आर लुईस बेसेस, ये लुईस बेस के जैसा काम करते हैं। सो कोवेलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। So now metallic or interstitial or non-stoichiometric hydrides. These hydrides are formed by many d block and f block elements, means inner transition element as well as transition element when they react with hydrogen. तो इन तरह के हाइड्राइड्स तब बनते हैं जब ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा कम बनाता है इस तरह का हाइड्राइड्स, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा बनाते हैं। खास करके निकल, सीरियम, पैलेडियम, एक्टिनियम ये वगैरह जो है वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाता है। ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड ही बनता है, ग्रुप 6 में। ग्रुप 7, 8, 9 हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड गैप। दीज हाइड्राइड्स हैव मेटेलिक अपीयरेंस, इनका मेटेलिक अपीयरेंस होता है और इनके प्रॉपर्टी मेटल, पेरेंट मेटल से मिलता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू स्टोर हाइड्रोजन एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू रिलीज हाइड्रोजन दे कैन डू सो। सो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं हाइड्रोजन में, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। Some of the examples of interstitial hydrides are titanium hydride TiH 1.73, palladium hydride 0.6 to 0.8, cerium hydride 2.7, lanthanum hydride 2.87, zirconium hydride 1.3 to 1.75. They conduct electricity, they appear like metals, and nickel, cerium, palladium, actinium forms interstitial hydrides. So thank you students. We will be discussing some more important topics in my upcoming video. Thank you.